ٹالی کوٹا کی جنگ 23 جنوری 1565 عیسوی کو وجے نگر اور دکن کی سلطنتوں کے درمیان ٹالی کوٹا کے میدان میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں ایک طرف وجے نگر کی فوجیں اور دوسری جانب دکن کی 5 سلطنتوں بیجاپور، گولکنڈہ، بیرار، بیدر اور احمد نگر کی فوجیں تھیں۔ اس جنگ نے ہندوستان کی تاریخ کا پانسا پلٹ دیا اور اس زمانے کی سب سے مضبوط ہندو سلطنت جو جنوبی ہند میں 1336 عیسوی یعنی 229 سالوں سے قائم تھی، دکن سلطنت کے سلطانوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ 1320 عیسوی میں دہلی میں غیاث الدین تغلق کے ہاتھوں خلجی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ اس وقت دہلی سلطنت کی سرحدیں افغانستان سے لے کر جنوبی ہند تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے 1323 عیسوی کو اپنے ولی عہد شہزادے محمد بن تغلق کو دکن کی طرف پیش قدمی کے لیے روانہ کیا۔ شہزادے محمد بن تغلق نے ہندوؤں کی کاکاتیہ سلطنت پر حملہ کیا اور اسے عبرت ناک شکست دے کر ان کے دارالحکومت ورنگل پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن تغلق کے اس حملے میں بہت سارے لوگ مارے گئے اور جو بچ گئے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ ہندو مورخین کے مطابق ان قیدیوں کو اسلام قبول کروا کے یا تو کام پر رکھا گیا یا فروخت کر دیا گیا۔ ان 9 مسلم قیدیوں میں ایک جوان کا نام ہری ہر تھا جسے 1323 عیسوی کی جنگ میں قیدی بنایا گیا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر کے دہلی سلطنت کے ہاں سپاہی کی نوکری اختیار کر لی۔ بے شک ظاہری طور پر ہری ہر نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ہندوؤں کے لیے احساس باقی تھا، اسی لیے اس کے ہندو سرداروں اور پنڈتوں کے ساتھ رابطے بھی جاری تھے۔ انہی سرداروں اور پنڈتوں کے کہنے پر 1334 عیسوی کو ہری ہر نے اسلام کو خیر بات کہا اور دوبارہ ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ 1336 عیسوی کو ہری ہر اور اس کے بھائی بکا نے جنوبی ہندوستان میں ہندو سلطنت کی بنیاد رکھی اور وجے نگر کے شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ وجے نگر شہر سے مناسبت کی وجہ سے اس سلطنت کو بھی وجے نگر کا نام دیا گیا۔ یہ سلطنت ہندوؤں کی ایک مضبوط سلطنت ثابت ہوئی جس نے آنے والے تقریباً 229 سالوں تک جنوبی ہند میں اپنی دھاک بٹھائے رکھی۔ جب سلطان محمد بن تغلق نے 1327 عیسوی کو دارالحکومت دہلی سے دیوگری منتقل کیا تو دہلی سے اردو بولنے والے لوگ دکن میں آنے لگے۔ انہی اردو بولنے والوں میں دہلی سلطنت کا ایک کمانڈر ظفر خان یعنی حسن گنگو تھا جسے سلطان محمد بن تغلق نے اپنا گورنر مقرر کیا تھا۔ 1339 عیسوی میں حسن گنگو نے دہلی سلطنت سے بغاوت کی، لیکن اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ اور اس کے ساتھی افغانستان کی طرف بھاگ گئے۔ مکمل تیاری کرنے کے بعد 1346 عیسوی کو حسن نے گلبرگہ پر حملہ کیا اور اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1347 عیسوی کو حسن گنگو نے علاؤالدین حسن بہمن شاہ کے نام سے خود کو سلطان مقرر کیا اور دکن میں بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھی جو آنے والے تقریباً 180 سالوں تک قائم رہی۔ بہمنی سلطنت کے وجود میں آنے کی وجہ سے اب دکن دہلی سلطنت کے قبضے سے نکل چکا تھا اور وہاں پر 2 مضبوط سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں، پہلی وجے نگر اور دوسری بہمنی سلطنت۔ وجے نگر اور بہمنی سلطنت مذہبی فرق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی دشمن سلطنتیں تھیں اور یہ ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہیں۔ یہ دونوں سلطنتیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے گھری ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں بھی اول تھیں۔ انہی سازشوں اور مسلمانوں میں شیعہ سنی تصادم ہونے کی وجہ سے بہمنی سلطنت کے ایک گورنر احمد نظام اول نے 1490 عیسوی کو بہمنی سلطنت سے بغاوت کی اور احمد نگر میں شیعہ حکومت قائم کر لی۔ اس کے علاوہ بیجاپور میں بھی گورنر یوسف عادل شاہ نے بغاوت کر کے شیعہ حکومت قائم کر لی۔ احمد نگر اور بیجاپور کے بعد گولکنڈہ میں بھی شیعہ حکومت قائم ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہمنی سلطنت 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور احمد نگر میں نظام شاہی، گولکنڈہ میں قطب شاہی، بیدار میں بیدار شاہی، بیرار میں اماد شاہی اور بیجاپور میں عادل شاہی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ ان 5 سلطنتوں کو مجموعی طور پر دکن کی سلطنتیں کہا جاتا ہے۔ واسکو دا گاما نے 1498 عیسوی کو پہلی بار یورپ سے ہندوستان کا سمندری راستہ تلاش کیا اور سمندر کے راستے ہندوستان آیا۔ واسکو دا گاما کے بعد پرتگالی بیڑے تجارت کی غرض سے ہندوستان آنے لگے۔ پرتگالیوں نے 1505 عیسوی کو ہندوستان کی ایک بندرگاہ کوچی پر قبضہ کر کے ہندوستان میں پہلا پرتگالی اڈا قائم کیا۔
विजय नगर की सल्तनत ने दक्कन की सल्तनतों के खिलाफ पुर्तगालियों को गनीमत समझा और इनसे दक्कन सल्तनतों के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने राजा कृष्णदेवराया की मदद से बीजापुर की सल्तनत से गोवा भी छीन लिया और इसे अपना दारुल हुकूमत मुकर्रर किया। राजा कृष्णदेवराया के दौरे हुकूमत में विजयनगर सल्तनत अपने अरूज पर थी, लेकिन 1529 ईस्वी में राजा कृष्णदेवराया के इंतकाल के बाद विजयनगर सल्तनत कमजोर होने लगी। 1542 ईस्वी में सदाशिव राय तख्त नशीन हुआ, जो एक कठपुतली राजा साबित हुआ। असल ताकत आलिया रामा राया के पास थी। आलिया रामा राया बहुत ही चालाक आदमी था और अपनी चालाकी की बिना पर वो दक्कन सल्तनतों को आपस में लड़वाता रहा। वो कभी दक्कन सल्तनतों को पुर्तगालियों से लड़वा देता या फिर इनमें से किसी एक के साथ मिलकर दूसरे के साथ लड़ाई शुरू कर देता। आलिया रामा राया का मकसद एक तो विजयनगर की सल्तनत को इनसे महफूज रखना था और दूसरा इनको आपस में लड़वा कर कमजोर करके इन सल्तनतों पर कब्जा करना था। लेकिन आलिया रामा राया की ये कोशिशें इस वक्त नाकाम हुई जब 1564 ईस्वी को आलिया रामा राया ने बीजापुर सल्तनत के एक किले रायचूर पर कब्जा कर लिया और जब बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने किला वापस लेने के लिए पैगाम भेजा तो आलिया रामा राया ने जवाब दिया कि मैदान जंग में आकर ले जाओ। आलिया रामा राया के इस जवाब ने जलती पर तेल का काम किया और दक्कन सल्तनत के सुल्तानों को इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा दक्कन के सुल्तानों ने आपस के तमाम इख्तलाफात को भुलाकर इकट्ठा होने का फैसला कर लिया और 29 दिसंबर 1564 ईस्वी को जंग की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी। जब आलिया रामा राया को इस बात का इल्म हुआ तो उसने भी अपनी फौजें इकट्ठी करना शुरू कर दी। दक्कन के सलातीन इस बात से बाखूबी वाकिफ थे कि वो अभी राजा रामा राया का मुकाबला करने की शक्कत नहीं रखते, क्योंकि राजा रामा राया एक बहुत बड़ी फौज लेकर इनके मुकाबले के लिए निकल पड़ा था। इसके अलावा दक्कन के सुल्तानों के पास कोई खास जंगी हिकमत अमली भी ना थी। सो गोलकुंडा के सुल्तान इब्राहिम शाह और अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह ने राजा रामा राया के एक वफादार से राब्ता किया और इसके हाथों आलिया रामा राया को वफादारी का पैगाम भिजवाया और एक अफवाह फैलाई कि वो अमन चाहते हैं, जंग के बजाय वो मैदान जंग से पीछे हट रहे हैं। आलिया रामा राया इस खबर के आने के बाद पुरसकून हो गया। उसने अपनी फौजों को हमला करने से रोक लिया, जिससे दक्कन के सुल्तानों को मजीद जंगी तैयारी करने का मौका मिल गया। इसी दौरान सुल्तान हुसैन निजाम शाह ने विजयनगर की फौज में मौजूद 2 मुसलमानों को इत्तेहाद के लिए पैगाम भेजे और अपने साथ मिलाने की दावत दी। विजयनगर की फौज में मौजूद 2 मुसलमान कमांडरों ने, जिन्हें गिलानी ब्रदर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने सुल्तान हुसैन निजाम शाह की दावत कबूल कर ली और मैदान जंग में इशारा मिलने पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को मुकम्मल तैयारियों और हिकमत अमली के बाद दक्कन के सलातीन ताली कोटा के मैदान में आकर सफ आरा हो गए। जब आलिया रामा राया को सूरत हाल का अंदाजा हुआ तो वो भी अपनी फौज को लेकर इस मैदान में पहुंच गया। आलिया रामा राया के पास 1,40,000 प्यादे, 10,000 घुड़सवार और 100 जंगी हाथी थे, जबकि दक्कन सुल्तानों की मुत्तहिदा फौज में 80,000 प्यादे, 30,000 घुड़सवार और दर्जनों जदीद तोपें थीं। विजयनगर की फौज पुराने तरज के जंगी हथियारों से लैस थी, जबकि दक्कन के सुल्तानों के पास जदीद हथियार और तोपें थीं। विजयनगर की फौज की तादाद ज्यादा होने की वजह से जीत के लिए बहुत ज्यादा पुरउम्मीद थी और वो अपनी ताकत और तादाद पर नाज करती थी। विजयनगर की फौज की निगरानी बूढ़े बूढ़े सरदार कर रहे थे, जबकि खुद आलिया रामा राया 90 साल का हो चुका था, जबकि दक्कन की फौजों की सिपा सालारी नौजवान सुल्तान कर रहे थे। विजयनगर फौज के मरकजी दस्तों की कमान खुद आलिया रामा राया का रहा था, जबकि दाएं जानब के दस्तों की कमान उसका भाई वेंकाताद्री और बाएं जानब के दस्तों की कमान उसका दूसरा भाई तिरुमाला कर रहा था। दक्कन की मुत्तहिदा फौजों के दाएं दस्तों की क़यादत सुल्तान अली आदिल शाह कर रहा था, जबकि बाएं जानब के दस्तों की क़यादत सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह और सुल्तान अली बुरीद शाह कर रहे थे। दक्कन फौज का मरकजी लश्कर सुल्तान हुसैन शाह की ज़ेरे निगरानी था। दक्कन सुल्तानों ने तोपें मैदान में मुनासिब मकामात पर लगाई हुई थीं। घुड़सवार दस्ते बुरहान इमाद शाह की ज़ेरे निगरानी में थे। जंग शुरू हुई तो विजयनगर फौज के दाएं हिस्से ने सबसे पहले हमला किया। यह हमला बहुत शिद्दत से किया गया
इस दस्ते की कमान आलिया रामा राया का भाई विंका तादरी कर रहा था। मुकाबला करने के लिए सुल्तान अली बुरीद शाह और सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह दोनों मैदान में आ गए, लेकिन विंका तादरी ने इस कदर शदीद हमला कराया था कि उसने दक्कन की फौजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विजयनगर फौज के जंगी हाथियों ने मैदान जंग में तबाही मचा दी। बाएं जानब से सुल्तान अली आदिल शाह ने विजयनगर की फौज पर हमला किया, लेकिन जंगी हाथियों के सामने वो भी बेबस नजर आया। तकरीबन 2 घंटे की शदीद लड़ाई में विंका तादरी के दस्तों ने अली बुरीद शाह के दस्तों को तबाह करके रख दिया था, जबकि दूसरी जानब अली आदिल शाह के दस्ते भी पीछे हटने पर मजबूर हो रहे थे। दक्कन की फौजें तोपों के साथ भी निशाने ले रही थीं, मगर इसके बावजूद भी मैदान जंग पर विजयनगर की फौजों का कब्जा था। हालात को मद्देनजर रखते हुए आलिया रामा राया अपने मरकजी दस्तों के साथ आगे बढ़ा और दक्कन की फौज के मरकज पर हमला कर दिया। दक्कन के सुल्तानों के लिए ये हमला रोकना नामुमकिन सा मालूम हो रहा था कि सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह के इशारे पर विजयनगर की फौज में मौजूद 2 मुसलमान कमांडर, जिन्हें गिलानी भाइयों के नाम से जाना जाता था, उन्होंने विजयनगर की फौज पर हमला कर दिया। ये गिलानी भाई पहले बीजापुर सल्तनत की फौज का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि बाद में विजयनगर की फौज में शामिल हो गए थे। जैसे ही गिलानी भाइयों ने अपने दस्तों के साथ विजयनगर की फौज पर हमला कर दिया, तो विजयनगर के लश्कर में भगदड़ मच गई। इससे दक्कन के सुल्तानों को बहुत बड़ा फायदा मिला। इस भगदड़ में आलिया रामा राया भी गिरफ्तार हो गया, जिसे सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह ने खुद अपने हाथों से कत्ल कर दिया। आलिया रामा राया का सर काटकर मैदान जंग में लटका दिया गया, जिसकी वजह से विजयनगर की फौजों के हौसले पस्त हो गए। सुल्तान बुरहान इमाद शाह ने घुड़सवार दस्तों के साथ विजयनगर की फौज को घेरे में लेना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी फौज ने भी शिद्दत के साथ हमले शुरू कर दिए। इन्हीं हमलों में आलिया रामा राया का छोटा भाई विंका तादरी भी मारा गया। विजयनगर की फौज के हौसले और भी ज्यादा पस्त हो गए और उन्होंने मैदान जंग से भागना शुरू कर दिया। आलिया रामा राया के दूसरे भाई तिरुमाला ने बिखरी हुई फौज को मुत्तहिद करने और वापस हमला करने के लिए पीछे हटने का हुक्म दिया। उसका ख्याल था कि फौज को विजयनगर में दोबारा यकजा करके दोबारा सुल्तानों पर हमला करेगा, लेकिन मैदान जंग की इस अफरा तफरी में विजयनगर की फौज बजाय विजयनगर के जिस तरफ मुंह हुआ इस तरफ भागना शुरू हो गई। लिहाजा तिरुमाला विजयनगर की फौज को मुत्तहिद करने में नाकाम रहा और वो खुद भी भाग गया। इस जंग में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग कत्ल हुए। जंग में दक्कन के सुल्तानों को फतह नसीब हुई और 229 सालों से कायम विजयनगर की सल्तनत का खात्मा हो गया। विजयनगर के शहरियों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी फौज को शिकस्त कैसे हो सकती है। टालीकोटा में विजयनगर की फौजों को शिकस्त देने के बाद दक्कन के सुल्तानों ने विजयनगर के शहर पर हमला कर दिया और बेशतर मौरखीन के मुताबिक विजयनगर के शहर को 5 माह तक लूटा गया और मुकम्मल तबाह करके रख दिया गया। फिर इसके बाद विजयनगर शहर कभी भी वो अरूज ना देख पाया जो उसे इस जंग से पहले हासिल था। इस जंग के बाद पुर्तगालियों का एक अहम दोस्त खत्म हो गया और वो गोवा तक ही महदूद हो गए। बेशक तालीकोटा की जंग के ज्यादातर मकासद सियासी थे, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर हिंदू और मुसलमान मौरखीन ने इस जंग को मजहबी रंग दिया है और इसे हिंदू और मुसलमान की जंग बनाकर पेश किया है।